Welcome student, good afternoon to everyone. We are continuing with the viscosity. In previous class we have studied the equation of continuity. Now today we will study the Bernoulli's equation, Stokes law. So let's begin with it. Potential energy of flowing liquid. So it is the energy, we will write one statement about it. It is the energy possessed by a liquid, possessed by a liquid by virtue of its pressure. By virtue of its pressure. एक और पॉइंट लिखेंगे. It is the measure of work done. It is the measure of work done in pushing the liquid. In pushing the liquid against pressure. Against pressure. इतना लिखना जरूरी है. Without imparting any velocity to it. Second point. This is the first point. A pressure energy of liquid हमें लिखना चाहिए. I am very sorry. It is not potential energy. It is pressure energy. Okay. Pressure energy of flowing liquids. Second point. Pressure energy of flowing liquid
is equal to pressure into volume. Third, pressure energy per unit volume. Pressure energy of flowing liquid पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज पी। तो इतना हमें याद रखना है। चौथा पॉइंट, pressure energy per unit mass of the liquid. Equal to P by rho, where rho is density of liquid. तो इतना इंफॉर्मेशन आपको प्रेशर एनर्जी के बारे में मालूम होना चाहिए। So you can note it down. Okay. So pressure energy is used for pushing the liquid without giving any velocity to the liquid. So this energy is responsible for pushing the liquid in forward direction. And pressure energy आपको याद रखना चाहिए कि जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू पीवी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये तीन चीजें, पर यूनिट मास मतलब डिवाइडेड बाय डेंसिटी, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इतनी चीजें हमें प्रेशर एनर्जी में मालूम होनी चाहिए। फ्लूइड इज अ वेरी बिग चैप्टर. We will be needing some 3 to 4 more classes to cover it up, but today we will have another session, and the second session will be very important because in second session we will do the number of numericals which will be useful for your upcoming tests and examination. So please do not miss the second session. And it is often seen कि student first session के बाद second session में आते नहीं है, तो what they are doing, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। तो प्रेशर एनर्जी आपने लिख लिया, इतने पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। तो हम अब इसको रब करने जा रहे हैं, क्लियर करने जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी
of flowing liquid. Potential energy of flowing liquid. पहला point. It is the energy possessed by liquid by virtue of its height. ये ध्यान रखिए. Above the surface of earth. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड. ऑब्वियसली आपने पढ़ा है, इट इज इक्वल टू mgh. थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होगा रो जी एच. फोर्थ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास of the liquid equal to rho gh divided by rho. So it will get cancelled. It is equal to gh. तो इतने पॉइंट्स आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड्स के बारे में मालूम होना चाहिए. दिस मच यू मस्ट नो अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. बिकॉज विदाउट थ्योरी हम कुछ नहीं कर सकते. तो थ्योरी सबसे पहले क्लियर होना चाहिए. Okay, so if you are done with it, and again I am telling you, we have another session that will be the longer one. In that session, we will be doing some selected numericals on Bernoulli's theorem, velocity of efflux, and terminal velocity. So those numericals will be very useful for upgrading your knowledge, and it will definitely help you to perform better in your upcoming test or examination. Yes, we can have. Definitely we can have. Okay, if you are done with it, तो फिर मुझे आप बता दो. Okay. तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी. देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ये मैं आपको एक और चीज बता दूं, which I want to tell you. कि आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जीएच. ये 3 पॉइंट्स आपको याद
रखनी चाहिए। तो ठीक है, अब हम इसको फिर एंड करते हैं और क्लियर कर देते हैं। Now the flowing liquid has got three energies. One is the pressure energy, which is used for pushing the liquid in forward direction. Another energy is the potential energy of liquid. Definitely, it only depends upon the height above the surface of Earth, or you can take any zero reference level. So it is dependent on the height of liquid. Definitely, potential energy per unit volume is rho gh. So density of liquid plays a very important role in finding the potential energy per unit volume. तो इसको क्लियर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। So let's write first point about it. It is the energy definitely possessed by a liquid due to its motion. It is the energy possessed by a liquid by virtue of its motion. Motion means velocity. Second point, kinetic energy of flowing liquid. One by two mv square. There should not be any doubt. Third, kinetic energy per unit volume. Of flowing liquid. Flowing liquid per unit volume. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो करना क्या होगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, और मास अपॉन वॉल्यूम आप जानते हैं डेंसिटी हो गया, तो हाफ रो वी स्क्वायर। अब चौथा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट मास। पर यूनिट मास। वन by 2 rho v square divided by rho. So it is half v square. Half v square. Okay, so now you can note it down.
तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो अब मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, now we are on the next theory, Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem. You can write according to this theorem, इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास of an incompressible non-viscous incompressible non-viscous fluid in steady flow, that is a streamline, or you may call it laminar, through a pipe remains constant throughout the flow. So I want to say that total energy is constant in one simple language, one simple sentence. Total energy is constant at every point. तो देखिए, इसको हम दो तरीकों से बोल सकते हैं। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v square is constant, और P by रो GH plus half V square is constant. तो ये हमने लिखा पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, और ये हमने लिखा पर यूनिट मास के लिए। ओके, इफ यू आर डन विद इट,
ओके, ठीक है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। अब आप देखिए, here pressure is P1 and here the pressure is P2. So we can write P plus rho G H plus half rho V square is constant. So P1 plus rho GH1 plus half rho V1 square equal to P2 plus rho GH2, क्योंकि पूरा उसको समझना पड़ेगा। अब देखिए, बर्नौलीज थ्योरम मालूम होने से कुछ नहीं होता है, उसको अप्लाई करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें एक स्पेशल केस होता है, उसमें हम बात करते हैं। तो आई एम गोइंग टू क्लियर इट। If tube is horizontal, so we can write P plus half rho V square is constant। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर वहां क्या होगा, कम होगा। बात को समझने की कोशिश करिए। और अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो न्यूमेरिकली यू कैन राइट डाउन दिस वे। इस पे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में काफी आए हैं। So you can note it down this।
तो यहाँ पे हम लिख जरूर लें, वेट अ मिनट, if V is more then P is less, if V is less then P is more. नहीं करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ चेंज क्या हो रहा है, हाइट चेंज नहीं हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, याद रखिए। और जहां पर वेलोसिटी कम होगी, जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी फ्लो की वहां प्रेशर कम होगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको। आई ऑलवेज एडवाइज यू कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़िए। डेरिवेशंस की बात नहीं है, थोड़ा उसको समझिए, बार बार रीड करिए। बिकॉज इन पास्ट वी डोंट नो कि कितना हमने पढ़ा है, हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें दोबारा मेमोरी में चीजों को रखने के लिए जो नोट्स लिख रहे हैं उसको कई बार पढ़िए। इसलिए मैं आपको एक एक चीज लिखवा देता हूँ, जिससे आपके पास एक सारी चीजें रिकॉर्ड में आ जाएं। अब देखिए अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें करना है, तो इसको क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए प्रेशर हेड, इसको याद रखिए, इक्वल टू P डिवाइडेड बाय रो जी। ग्रेविटेशनल हेड, H, और वेलोसिटी हेड, V स्क्वायर अपॉन 2G। तो इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो इसको क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए अगली हेडिंग, अब इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल हेडिंग पर हम आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स तो तभी सॉल्व कर पाएंगे ना जब हमारे पास फॉर्मूला होगा उसको सॉल्व करने के लिए। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, इंपॉर्टेंट। देखिए इफ ए लिक्विड, एक लिक्विड को कंसीडर करिए, इफ ए लिक्विड इज फिल्ड इन ए वेसल अप टू हाइट h। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं।
अब देखिए and if a hole is made at a depth, डायग्राम को देखिए, at a depth ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, h below the free surface। अब देखिए, अब आप पूछेंगे फ्री सरफेस क्या है, ये रहा फ्री सरफेस, दिस इज द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से h बिलो, h डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर ये देखिए एक होल किया है, तो व्हाट विल हैपन, द लिक्विड विल कम आउट विद दिस होल। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि अगर लिक्विड इस होल से बाहर आता है तो बाहर आते समय व्हेन इट लीव्स दिस होल व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ये पहली चीज हमें निकालनी है। और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है कि जब लिक्विड कहीं ना किसी पॉइंट पे तो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो कितने डिस्टेंस पर वो ग्राउंड से टकराएगा, स्ट्राइक करेगा। ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो एच हाइट बिलो पे हमने एक होल कर दिया है। अब सपोज करा हमने कि लिक्विड यहाँ पर किस वेलोसिटी से बाहर आता है, v से, तो v को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अब देखिए, इस v को कैलकुलेट करने के लिए हम दो रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो हम करने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो रेफरेंस पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए एक हम करेंगे ए और एक हम करेंगे ये। तो हमने पहला रेफरेंस पॉइंट कौन सा सिलेक्ट किया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो हम बर्नौलिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई द बर्नौलिस थ्योरम। अब देखिए, और हमने ये सपोज किया P0, P0 को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ा समझिएगा अच्छे से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए, अप्लाई कैसे करेंगे, टोटल एनर्जी एट ए, इसको सीख लीजिए, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, टोटल एनर्जी एट सी। बात समझ में आई। तो पी पर एनर्जी क्या होगी, पी पर एनर्जी होगी, देखिए पी पर एनर्जी क्या होगी, P0 प्रेशर एनर्जी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच। और यहाँ पर ए पर लिक्विड की कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि यहाँ रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब सी पर, भाई सी पर ये जो होल है यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वली तो है पर यहाँ पर चेंज हो गया। अब देखिए ये हाइट कितनी है, एच है, और ये एच है, तो ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, ये देखिए आप, एच माइनस एच होगी, होगी ना। यहाँ पर हम एनर्जी क्या लिखेंगे, किताबों में डायरेक्ट दे देते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, एच माइनस एच। और क्योंकि यहाँ लिक्विड बाहर आ रहा है, एक वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तो हम जरूर लिखेंगे हाफ रो वी स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। तो सबसे पहले तो ये P0 को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा बचा रो जी एच इक्वल टू, ये ब्रैकेट जो है राइट में इसे ओपन कर देंगे, माइनस रो जी स्मॉल एच, बड़ा ध्यान रखिए, हाफ रो वी स्क्वायर।
अब क्या कैंसिल होगा बताओ? ये कैंसिल होगा और ये जो वाला टर्म है ये लेफ्ट में चला जाएगा। जब ये टर्म लेफ्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? रो जी एच इक्वल टू हाफ रो, वेट ए मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, हाफ रो वी स्क्वायर। अब क्या कैंसिल करेंगे? रो को कैंसिल कर देंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, टू जी एच, सो वी इक्वल टू रूट ऑफ टू जी एच। अब देखिए एच क्या है? व्हाट इज एच? इस पॉइंट से जहां पर होल किया गया है उसकी डेप्थ है। तो सबसे पहले तो इन सबको नोट कर लें और थोड़ा मुझे बताएं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, कि कैसे हमने बर्नौली थ्योरम अप्लाई करी। देखिए सीखना पड़ेगा, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, सीखना पड़ेगा। डू आई अंडरस्टैंड इट और नॉट? यू कैन टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं। हाँ तभी बोलना है जब समझ में आया है, नहीं तो ना बोलना सीखना चाहिए। दो ही लोग मैसेज करते हैं, बाकी लोग सो रहे हैं, हो सकता है ऐसा। देयर इज नो शॉर्टकट टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ऐसा है, हम ऐसा सिस्टम बना लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे तो एग्जाम क्लियर होगा। नहीं होगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटर टीचर और दूसरा स्टूडेंट। तो ताली दो हाथ से बजती है, तो स्टूडेंट को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर को भी करनी पड़ेगी, स्टूडेंट को भी करनी पड़ेगी। ओके, तो ये देखिए, अब वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स हमने निकाल लिया, तो अब इसमें हम कुछ लिखेंगे, है ना? ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स क्या होगी? रूट ऑफ टू जी एच। तो इसका मीनिंग है ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम द फ्री सरफेस of liquid greater will be the velocity of efflux। अब देखिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टाइम टेकन बाय liquid to reach the base level। अब देखिए, यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी थी रूट टू जी एच और वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। और अभी लिक्विड को कितना नीचे आना है? एच माइनस एच ट्रेवल करना है। सो यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना वर्टिकल डिस्टेंस नीचे आना है? एच माइनस एच। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि उसके पास जो ओरिफिस पर, होल पर जो वेलोसिटी है, इफ्लक्स वेलोसिटी है, वो हॉरिजॉन्टल है। और ग्रेविटी हाफ जी टी स्क्वायर, सो टू इंटू, बड़ा ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है, अपॉन जी इक्वल टू रूट ऑफ टी, दैट इज द टाइम टेकन बाय लिक्विड टू रीच द बेस लेवल।
ये सब कैलकुलेशन भी हमें मालूम होने चाहिए। तो इफ यू नोट इट डाउन, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करना है भाई, बताओ कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करना है? ओके, अब रेंज निकालनी है। तो देखिए यहां पर x क्या है, रेंज है। अब इस रेंज को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको क्लियर कर रहे हैं। अब इस रेंज को भी हम क्लियर कर लेंगे। यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इन, ये प्रोजेक्टाइल का केस हो गया, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रूट 2g h। और ये बड़ा ध्यान रहे, ये हमें लिखना है स्मॉल h, है ना। और टाइम हमने निकाल लिया था अभी, 2h माइनस h डिवाइडेड बाय g। तो देखिए अब ये रूट जी तो भाई कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ h इंटू h माइनस h। ये आपने रेंज को कैलकुलेट कर लिया। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज h should be equal to h by 2 and maximum range, ये सब याद रहना चाहिए, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू h, उस डेप्थ के बराबर होगी जिस पर लिक्विड फिल्ड है। So if you note it down, ये हमने लिखा है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब h की वैल्यू h/2 होगी। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, h होगी। ये दोनों बातों को समझना चाहिए। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं।
ओके, तो अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए, कंसीडर अ टैंक विच इज फिल्ड विद अ लिक्विड। तो इस टैंक को कंसीडर कर रहे हैं हम, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड। Liquid is filled up to what height? Consider a tank, लिख लेते हैं, in which a liquid is filled up to height h. And suppose let there is a hole y below y distance, ऐसा लिखना चाहिए, you should write y distance below the free surface, ध्यान देना है इसको, below the free surface. So what will happen? The liquid will come out, no doubt about it. So as liquid comes out of the hole, level of liquid decreases. Any doubt? अब देखिए, जो हम लिखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। टाइम टेकन फॉर द लेवल of liquid to fall from H to say H dash, T equal to, I will explain you, A upon A0 root of 2 by G bracket root of H minus root of H dash. What is A0? Now it is very important. अब देखिए, थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेते हैं। This area is A. So A is the area of a free surface. Okay.
A is the area of free surface. You can write down A is the area of free surface. And what is A0? Area, जो होल का एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, तो A0 को भी हमें लिखना पड़ेगा इज द एरिया ऑफ ओरिफिस at a depth y below the free surface. Below the, थोड़ा इसको अच्छे से लिखेंगे स्टूडेंट, free surface. So please remember this formula. This is very important. And it comes by the integration. I am not interested in doing any integration, but you should remember the formula. अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, वो भी हम करेंगे, तो आप इसे नोट कर लें और मुझे बताएं। तो जब एक होल कर देंगे तो डेफिनेटली उस होल से लिक्विड बाहर आएगा, तो टैंक खाली होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद लेवल ऑफ जो लिक्विड है वो उसमें क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, अभी हम इस पे अगले सेशन में न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखिए, एक स्पेशल केस है, उसको करते हैं। इफ द होल is at the bottom of the tank, टैंक के बॉटम पे है, so time t to make the tank empty will be a by a0 root of 2h by g. क्योंकि उस फॉर्मूले में एच डैश को हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि हमने उस फॉर्मूले में कहा था लेवल एच से एच डैश हो रहा है, तो जब पूरा ही टैंक खाली हो रहा है तो लेवल H2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। So in second session we are doing न्यूमेरिकल्स। क्या करने जा रहे हैं हम, न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो न्यूमेरिकल्स में, और ये जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। सेकंड सेशन हम 10 से 12 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे।